Hello my dear students of standard 3rd. Today in this particular video we will discuss about our third chapter of science, soil. Here in this particular lessons we will discuss soil information, what does soil contain, types of soil and soil and crops. Okay, one by one I will explain you all the things. In first page we will read these chapters very carefully. So चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले हम आ रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर. ओके, देखिए वन बाय वन आई एम रीडिंग, प्लीज सी केयरफुली. वी ऑल लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. It was not the same as it looks now. In the beginning, there was no life on the earth. It was completely covered with hard rocks. You can see these figures carefully. Formation of soil. देखिए, whenever you are going to see in figure, then what you can see that mountains are there, right? You can see that smoke. You can see water bodies, right? After it, you can see this fire. It means somewhere the volcano eruption. Volcano eruption means overall we can say that this earth is hot. The earth is hot, right? तो देखिए क्या दिया है बच्चों यहाँ पर. We all live on the planet Earth. Where we all are living? We all are living on the Earth. It was not the same. What we are looking today, our Earth was not same in the beginning. In the beginning, there was no life. No life on Earth. कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे nothing was on Earth. It was completely covered. कैसे covered थी बेटा ये? With hard rocks. What was here? Rocks. पहाड़, चट्टाने. Everywhere the same thing were there. Okay. अब देखिए आगे क्या हुआ इसके बाद. These rocks, आप देख सकते हैं यहां पर ये लिखा है these rocks were heated by the sun's heat and cooled by the rain and wind. These continued for many years. As a result, the rocks got weathered, such as broken into very small pieces. New word is here, broken. So please, it would be good that you have to underline this broken. Okay, broken, broken into very small now pieces also. These small pieces were carried also you have to underline, carried here and there, rubbed, carry here and there. हाँ, उसके पहले एक और लाइन है बच्चों. With the wind and water, slowly, with the passage of time. Underline this, passage of time. These small pieces rubbed. Underline this, RUBBED, rubbed against each other and resulted. Underline please, resulted in the formation of soil. Now the earth is a beautiful place to live. There are hills, plains, desert. Underline desert please, mountains, seas and oceans. We grow different crops in the soil. देखिए हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, व्हाट आई जस्ट टॉट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू इन द प्रीवियस पैराग्राफ सॉइल फॉर्मेशन. इन द बिगिनिंग हाउ वी आर लुकिंग द अर्थ टुडे. इन द बिगिनिंग इट वाज नॉट लाइक दैट. इन बिगिनिंग देयर वर नो लाइफ ऑन द अर्थ. इट वाज टोटली कवर्ड विथ हार्ड रॉक्स. अब क्या हुआ देखिए, लेटरली व्हाट हैपेंड, स्लोली स्लोली दीज रॉक्स वर हीटेड बाय द सन्स. रॉक्स वर हीटेड बाय द सन्स हीट. क्या होता है, रॉक्स पे गर्मी पड़ती रही बेटा, सन्स हीट एंड देन कूल्ड बाय रेन. गर्मी भी पड़ी, उसके बाद बारिश हुई, वो ठंडी भी हुई, वाइंड हवा आंधी भी चली. These continued for many years. Many years, what happened on the earth? Rocks were heated by sun's heat, cooled by the rain and wind.
continued for many years. और as a result the rocks got weathered. धीरे धीरे रॉक क्या हो गई, वेदर्ड हो गई है. वेदर्ड इट मीन्स व्हाट, धीरे धीरे क्या हुई कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली गई. ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. वेदर्ड मतलब मौसम की वजह से चट्टानों के साथ क्या होने लगा, धीरे धीरे वो टूटने फूटने लगी, कटने लगी, उनका क्षय होने लगा. एंड एट लास्ट दे कन्वर्ट इन द मीन्स इन द स्मॉल पीसेस. दीज स्मॉल पीसेस, ये स्मॉल पीस का क्या हुआ, दीज स्मॉल पीसेस वर कैरीड, कहाँ कैरीड किए गए, हियर एंड देयर विद द वाइंड एंड वाटर. विद द हेल्प ऑफ वाइंड एंड वाटर दिस स्मॉल पीसेस वर कैरीड हियर टू देयर. एंड स्लोली विद द पासेस ऑफ टाइम, टाइम निकलता गया बच्चों. एंड दीज स्मॉल पीसेस, ये जो छोटे छोटे पीस थे ना, जो वेदर्ड की वजह से छोटे छोटे पीसों में चट्टाने छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट हो गई थी. ये पीस आपस में रब्ड होते गए, रगड़ते गए एक दूसरे के साथ. और एट द एंड एट द रिजल्टेड क्या हुआ, मट्टी बनी, धूल बनी, सॉइल बनी. इस तरह से हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ओके, किस तरह से मिट्टी बनी है, दैट इज द प्रोसेस. और नाउ आज के समय में द अर्थ क्या है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव. हमारे रहने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. व्हाट मेनी थिंग्स आर हियर. हियर वी कैन सी, क्या क्या मिल सकता है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो. अर्थ पे हिल्स है, प्लेन है, डेजर्ट है, माउंटेन है, सी है, ओशन है, एवरीथिंग इज देयर. हिल्स आर देयर, प्लेन आर देयर, आफ्टर इट डेजर्ट, right or not, Sahara desert, there is no water, no vegetations, only sand, big mountains, right. सीज मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मीन्स बड़े बड़े आपको मैदान, उसके बाद डेजर्ट एरिया, पूरा रेगिस्तान, माउंटेन्स, पर्वत, समुद्र, महासागर. मीन्स nowadays we can get this all the things on earth, and it is really very beautiful place to live in. We grow different crops in this soil. In soil we are growing different type of crops. A large, यहाँ पर देखिए, a large number of tiny insect, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट, राइट, लाइक बग्स, खटमल, यू नो, एज वेल एज सम अर्थवर्म, एज वेल एज सब कुछ कीड़े जो होते हैं जिनको बीटल्स बोलते हैं. दे आर लिविंग इन द सॉइल. कहाँ रहते हैं ये लोग, दे लिव इन द सॉइल. कहाँ पे रह रहे हैं बच्चों, सॉइल में. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं. क्या क्या रहता है, सॉइल फॉर्मेशन हो चुका. अब आएंगे कि व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल के अंदर क्या रहता है. व्हाट डज सॉइल कंटेन, कंटेन को अंडरलाइन कर लीजिए, सॉइल कंटेन. ओके, देखिए, सॉइल इज फार्म्ड, FORMED, बाय द कॉम्बिनेशन, अंडरलाइन दिस कॉम्बिनेशन, न्यू वर्ड फॉर यू, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स प्रेजेंट इन नेचर. मेनी थिंग्स वी कैन गेट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉइल. बहुत सारी चीजें रहती है सॉइल में. क्या क्या रहती है, एक एक्टिविटीज हम देखते हैं. लेट अस डू सम एक्टिविटीज, अंडरलाइन दिस एक्टिविटी टू सी व्हाट डज सॉइल कंटेन. वन एक्टिविटीज है, सॉइल कंटेन है ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड स्टोन. क्या है एक्टिविटी हमारी, पहली एक्टिविटीज में हम क्या पढ़ेंगे कि सॉइल में क्या क्या रहता है बच्चों, ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड स्टोन. ओके, आई विल क्लियरिफाई यू वेरी प्रॉपरली व्हाट इज ह्यूमस, what is clay, what is sand and what is stone. wait please, एक और एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल कंटेन्स वाटर. तो पहले हम सबसे पहले बता देंगे कि सॉइल में क्या रहता है, ह्यूमस, clay, sand and stone. One activities we will do and then we can understand. This is the activities you can see here in this figure. Upper side is humus, after it you can say that clay, after clay sand, and at last bottom you can get stone. क्या एक्टिविटीज है, हम क्या करेंगे, टेक सम सॉइल फ्रॉम ए गार्डन. You can take some soil from a garden and put in a jar. Like this jar, you have to put some soil. This is soil we are putting here. अब देखिए आगे क्या होता है. Now what we have to do? Fill water in the jar, right? After it, cover the lid. Lid is this cover. This is lid है ना, इस lid से हमने इसको पूरा cover कर दिया. Cover the lid. Lid underline and shake, यानी हिलाना. Shake it well. Now you have to shake it well. फिर क्या करना है आपको, what you have to do next? Allow the jar to stand undisturbed. Underline this undisturbed. After it, you should keep the jar in the same position. No need to disturb it for half an hour. Let's see what will happen. Now observe the soil in the jar. Now you have to see condition of soil in the jar. What you will see, you will observe underline. Okay, you will observe that the stones, line side you are looking in this figure, look, this is stone. Okay, what you will see, we will see that the stones have underline this settled, जैसे बैठ जाते हैं, settled down at the bottom. Bottom also underline, ये सबसे नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, that is called bottom. Bottom of the jar, the grains of sand
सैंड के महीन कण, द ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स अंडरलाइन, ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर सीन अबव द स्टोन, above the stone you can see this sand, this is, you can see this is sand. Okay, next, then there is a layer of clay above. Now you can see here one layer, this is clay, this layer is clay. Okay, above the sand you can see clay. After it, finally you will see dead plants floating on the top. Dead plant, जो प्लांट मर जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं, राइट, वो कहाँ पे तैरते हैं? दे आर फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल, टॉप ऑफ द जार, जो जार में ऊपर तैरते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ह्यूमस. व्हाट वी कॉल्ड इट? ह्यूमस. एंड इट इज वेरी फर्टाइल. जो भी हमारी पैदावार होती है ना, फॉर दैट ऑल थिंग्स हु इज रिस्पॉन्सिबल? ह्यूमस इज रिस्पॉन्सिबल. एंड ह्यूमस इज मेड बाय डेड प्लांट्स. किससे बनता है ह्यूमस बच्चों? डेड प्लांट से. ओके, डेड प्लांट जो ऊपर तैरते रहते हैं, दे कॉल्ड ह्यूमस. क्या बोलते हैं हम इनको? ह्यूमस. ओके, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, इसमें हमने बता दिया. इसमें ह्यूमस होता है, क्ले होता है, सैंड होता है और स्टोन होता है. एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 2, soil contains water. Very easily this experiment you can do also at your home. What to do? Take some soil from a garden, right, and put in a small tin. ये बॉक्स इस स्मॉल टिन के अंदर आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हीट इट ऑन ए लो फ्लेम. ये गैस के ऊपर इसको हीट करना है, लो फ्लेम पे है, तेज नहीं. कीप इट कवर्ड विथ ए लीड. यू हैव टू कवर विथ दिस लीड. यू कैन सी दिस इज कवर्ड बाय ए लीड. आफ्टर ढक्कन से इसको कवर कर दिया, रिमूव द लीड एंड ऑब्जर्व. आफ्टर सम टाइम यू हैव टू रिमूव द लीड एंड ऑब्जर्व. व्हाट यू विल सी? What you will see? You will observe tiny drops of water. Tiny drops of water on the lead. ये लीड के ऊपर tiny drops of water हैं. ओके, प्रूविंग दैट, क्या प्रूव कर रहा है ये? सॉइल कंटेन्स वाटर. भाई सॉइल, हमने वाटर थोड़ी लिया था, हमने केवल सॉइल ली थी. सॉइल को हल्का सा गर्म किया तो वो गर्म हुई, गर्म होने में भाप निकली और भाप में क्या था? पानी था, और वो ढक्कन के ऊपर पानी के रूप में परिवर्तित हो गया. तो इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है कि सॉइल कंटेन्स वाटर. ये वाटर कौन सा है ढक्कन के ऊपर? दिस ऑल वाटर विच ऑलरेडी कंटेंट बाय दैट पर्टिकुलर सॉइल. ये वाटर ऑलरेडी किसके अंदर था? सॉइल के अंदर था. ये एक्टिविटीज आप अकेले नहीं करेंगे, विद द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर. डायरेक्ट करोगे तो बेटा आपको यू कैन मीन्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ. आप जल सकते हो, राइट और नॉट, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ सकती है. तो ये हो गया हमारा. एक और एक्टिविटीज हम करेंगे, दैट इज सॉइल कंटेन्स एयर. Which activities we will do now? Soil contains air. Soil contains water, that we have done. And previously what we have done? कि soil contains humus, clay and sand and stone. That we have done. After it soil contains water. That also we have done. अब हम करेंगे soil contains air. तो क्या है? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट. What to do? Might have you seen any time? Many time you can see at your home. Take some soil from the garden in a glass jar. Some soil you have to take from the garden and pour some water. Just also you can do at your home. Pour some water over it. And observe. You will observe bubbles floating up. Underline bubbles and underline floating up. बुलबुले ऊपर आते हैं. This proves, underline this proves the presence of air trapped. Underline this, trapped in the soil. What it is going to experiment. आपने देखा होगा कभी मिट्टी के ऊपर आप पानी डाल के देखना, जैसे ही आप पानी डालेंगे ना तो क्या होगा? बबल्स निकलेंगे, है ना, फ्लोटिंग अप हो जाएंगे बबल्स, ऊपर आके और बुलबुले के रूप में बाहर निकलेंगे मट्टी के अंदर से. देखना आप कभी भी करके. तो कारण क्या रहा? कारण ये रहा, जैसे ही हमने पानी डाला ना तो पानी अंदर जैसे ही गया तो जो सॉइल थी काय में ट्रैप्ड थी, जो एयर थी सॉइल के अंदर ट्रैप्ड जो थी, जो सॉइल के अंदर जो एयर थी वो पानी गया तो वो एयर बाहर आने लगी बुलबुलों के रूप में. अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू? समझ में आई ना बात? देखिए ये आप हमने एक्सपेरिमेंट करा. ये एक जार लिया, जार में हमने कुछ गार्डन की मिट्टी रखी, मिट्टी रख के उसके ऊपर हमने पानी डाला. जैसे ही पानी डालेंगे इसमें से क्या? बुलबुले निकलने लग जाएंगे, बुलबुले निकलने लग जाएंगे. दैट्स ऑल. हैंड्स प्रूव्ड. व्हाट प्रूव्ड? सॉइल कंटेन्स एयर. सॉइल कंटेन्स एयर. गॉट माय पॉइंट? ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर प्रेजेंट एट different places. Soil types are mainly 3. Sandy, underline करें बच्चों, sandy soil, clayey soil and loamy soil. हमेशा ध्यान रखना. Soil कितने तरह की होती है? Mainly 3 types. Sandy, clayey and loamy. Sandy, clayey and loamy. Sandy, clayey and loamy. Sandy, clayey and loamy. Sandy, clayey and loamy.
ओके, अब हम बढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। कौन सी होती है सैंडी सॉइल? सैंडी बाय नेम सैंड, मतलब जिसमें रेत रहती है। सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड, सैंडी सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट। कहाँ पे मिलती है बच्चों? ये डेजर्ट में, रेगिस्तान में, और इन द सी शोर। और कहाँ मिलती है? समुद्र के किनारे पे। आप देख सकते हो डेजर्ट एरिया, देख केमल वॉक कर रहा है, डेजर्ट एरिया। ये क्या सब दिख रहा है येलो टाइप का? दिस ऑल आर सैंड। ऐसे ऐसे समुद्र के किनारे पे भी आप देख सकते हो, राइट और नॉट? सच सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर, दिस सॉइल कांट होल्ड वाटर। ये पानी को नहीं पकड़ पाती, नहीं रोक पाती है। कांट होल्ड मच वाटर एज द सॉइल पार्टिकल्स आर बिग, सॉइल के पार्टिकल्स बिग होते हैं क्योंकि उसमें सैंड है। सो दिस सॉइल इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, दैट्स वाई वी कांट ग्रो प्रॉपरली क्रॉप। क्योंकि क्रॉप हम कैसी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं? जो पानी को होल्ड कर सके, पानी को रोक सके, राइट? अब जब इसमें पानी रुकेगा ही नहीं तो क्रॉप तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए इट इज नॉट सो यूजफुल। अंडरस्टूड? नाउ क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल इज स्टिकी, चिपकने वाली रहती है, चिकनी चिकनी मिट्टी देखी कि नहीं आपने? दैट इज क्लेई सॉइल। इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, जो कुम्हार लोग यूज़ करते हैं ना, मटके बनाते हैं, दिए बनाते हैं, अलग अलग तरह के मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सुराही, रांझान, वाट एवर भी। तो ये सब कौन सी मिट्टी लेते हैं बच्चों? दे आर यूजिंग क्लेई सॉइल। विच सॉइल? क्लेई। क्लेई सॉइल की स्पेशलिटी क्या रहती है? स्टिकी रहती है, चिकनी रहती है ना, आपस में चिपकती है वो, तभी तो पॉट बन पाते हैं, राइट? क्लेई सॉइल इज स्टिकी, इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स। दिस सॉइल टाइप कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये सॉइल क्या कर सकती है? इट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, जब भी तो मटके में पानी रुक पाता है भाई। इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर, दिस सॉइल कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड? ये क्लेई सॉइल हम जनरली कहाँ में यूज करते हैं? फॉर मेकिंग पॉट्स, है ना। अब आप देख सकते हो, दिस इज द पॉटर। आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पॉटर भैया हैं। इन पॉटर भैया को ध्यान से देखो, ये देखो मटके बना रहे हैं, पीछे दिख रहे हैं आपको, राइट? ये वन यू मे सी, है ना, आपने यहाँ बाग में भी देखा होगा, कुक्षी में भी, कहाँ कहाँ सभी जगह बनते हैं इस तरह की चीज़ें, राइट? ही इज़ पॉटर। एंड कौन सी सॉइल को यूज़ करें? ही इज़ यूजिंग क्लेई सॉइल, ही इज़ यूजिंग क्लेई सॉइल। अब हम आते हैं लास्ट, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज व्हाट? इट इज बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आप देख सकते हैं क्रॉप्स जो ग्रो हो रही है, यहाँ जो सॉइल यूज़ करी है, दैट इज विच सॉइल? इट इज लोमी सॉइल। ओके, तो लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। It has a lot of humus which makes it fertile. ये जो आपकी जो लोमी सॉइल रहती है ना, इट कंटेन लॉट ऑफ ह्यूमस। क्या रहता है इसके अंदर? लॉट ऑफ ह्यूमस। और ह्यूमस क्या रहता है? इट इज वेरी फर्टाइल, इट्स रिक्वायर, okay, it's required for the proper growth of crops. So what we can say, loamy soil is the best soil for the growing crops. It can hold both air as well as water, दोनों को ये hold कर सकती है। It has a lot of humus which makes it fertile, वही इसको fertile बनाते हैं। ओके, अब हम आते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स में। देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। मैन्योर, अंडरलाइन दिस, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल। ये खाद होता है जो एडेड टू द सॉइल, काय के लिए? टू मेक इट फर्टाइल। आपने देखा होगा बहुत सारे का देशी खाद भी यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, राइट और नॉट? ये सब काय के लिए करते हैं हम? टू गेट ए बेटर यील्ड, टू गेट ए बेटर यील्ड। अंडरलाइन करो, बेटर यील्ड। बेटर यील्ड का मतलब होता है अच्छी पैदावार, बहुत ज़्यादा उपज मिलना, हमको क्रॉप बहुत अच्छे से मिलना, राइट? बेटर यील्ड, उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा होना। तो इफ़ यू वांट better yield, in that case manure is added to the soil, and this manure's work is what? It is means with the help of this manure means what is its work? The soil is means getting fertile with the help of this, and we can get a better yield of crops. गॉट दिस पॉइंट? सॉइल एंड क्रॉप्स, यू अंडरस्टैंड? अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको उन सभी चीज़ों के लिए। फर्स्ट आई टोल्ड वेदरिंग। वेदरिंग क्या बताया था मैंने? ब्रेकिंग स्टोन बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या होता है वेदरिंग में? ब्रेकिंग ऑफ स्टोन बाय एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। ह्यूमस आई टोल्ड यू, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच मेक द सॉइल फर्टाइल। डेड मरे हुए प्लांट्स एज वेल एज स्मॉल मरे हुए एनिमल्स, वो क्या करते हैं? विच मेक द सॉइल फर्टाइल। देन लोमी। लोमी मीन्स व्हाट? लोम वी कैन से दैट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लोमी सॉइल के अंदर क्या होता है? सैंड और क्ले दोनों का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड लोमी सॉइल। मैन्योर क्या होता है? सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल, सम सब्सटेंस वी आर गोइंग टू मिक्स इन द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। क्ले इट मीन्स स्टिकी सॉइल, स्टिकी सॉइल चिकनी मट्टी, राइट? यील्ड मैंने अभी बताया था, टू प्रोड्यूस या टू गिव या टू ग्रांट, टू मच द वेन एवर टू प्रोड्यूस, ज़्यादा पैदा करना, टू गिव देना, टू ग्रांट
है ना। ये इस केस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, यील्ड। यील्ड का मीनिंग क्या होता है, टू प्रोड्यूस, टू गिव और टू ग्रांट। इज दैट क्लियर। तो हमने पढ़ा यहाँ पे वेदरिंग, ह्यूमस, लोमी, मैन्योर, क्लेई एंड यील्ड। ये सब चीज़ें बच्चों आपको पूरी तरह से क्लियरिफाई होना ही चाहिए। होप दैट दिस लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू अंडरस्टैंड। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इस लेसन में। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा वी रीड अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन, ओके, एंड इन सॉइल फॉर्मेशन वी रीड कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अर्थ इन द बिगिनिंग एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अर्थ नाउअडेज। इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वी रीड ऑल द थिंग्स डीपली, right? What is the weather, everything we clarified here, means how the soil form, मिट्टी कैसे बनी, then we read all the things, okay. After it means we paid our focus towards the soil contents. Here we discussed about that humus, clay, sand and stone, and three activities we have done. With the help of these three activities we came to know, number one, soil contains humus, clay, sand and stone. Second, we came to know soil contains water, and third we came to know कि soil contains air. After we read about the types of soil, sandy, clay and loamy. Sandy, it means this particular soil is found in the desert area, okay, it can't hold the much water, so this soil is not good for the growing crops. After it, clay soil, it is sticky and used for the making pots by the potter, and loamy soil, it is best soil for the growing crops. It hold both air as well as water, and it has a lot of humus which make it fertile. तो होप दिस लेसन यू अंडरस्टैंड। तो ओके गाइस, टेक केयर। एक बार फिर से लेसन को ध्यान से पढ़ें और समझें, ओके। चलिए बाय, टेक केयर।